Hello everyone, welcome to this video and welcome back to the channel Simplifying Science with Shilpa. So we will be starting with part number 2 of this chapter, Work and Energy, class 9th Physics. So in the last video we have discussed about types of work, positive work, negative work, zero work. Positive work is when the force is in the direction of displacement of the body. If force is acting in this direction, then the body is also displacing in this direction. Negative work is when force and displacement are in opposite direction. If the force is acting in this direction, but the body is moving in opposite direction. And zero work is when force is acting perpendicular to the displacement. If force is acting downwards and the body is moving in this direction, so the angle between force and displacement is 90 degree. So when the angle is 90 degree, work done will be 0. When the angle is 180 degree, the work done will be negative. And when the angle is 0 degree, the work done will be positive. So we have done numericals of positive work where the force and displacement are in the same direction. Now continuing from that question, we have done a numerical, an in-text question in your book. Yes, this question, the last question which we have done. Okay, so continuing from this page only and starting from this paragraph below the in-text question. Consider another situation in which force and displacement are in the same direction. Force and displacement are in the same direction. A baby pulling a toy car parallel to the ground as shown in 11.4 figure. इस फिगर में आप देख रहे हो ना, जो बेबी है वो उस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है. अगर वो यहाँ से किसी बॉडी को पुल कर रही है तो बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है. The baby has exerted a force in the direction of displacement of the car. So this work is positive work. In this situation, the work done will be equal to the product of force and displacement. फॉर्मूला क्या था वर्क डन का? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर. तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर एंड एसआई यूनिट विल बी जूल्स. So if a boy or a baby is pulling a cart, he or she is applying the force in the same direction as in the displacement. The work done will be equal to the product of force and displacement. In such situation, the work done by the force is taken as positive. Now you have to consider another situation in which an object is moving with a uniform velocity. कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है अलॉन्ग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है. Now a retarding force F is applied in the opposite direction. That is the angle between the two direction is 180 degree. जैसे ये सपोज ये कोई कार है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है. सडनली आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो. ब्रेक्स क्या होंगे? रिटार्डिंग होते हैं. जब भी हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं वो रिटार्डिंग होते हैं नेचर में. रिटार्डिंग का मतलब देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्सेलरेशन, एक होता है रिटार्डेशन. एक्सेलरेशन का मतलब होता है, एक्सेलरेशन मीन्स कि जो भी बॉडी है उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी. और रिटार्डेशन का मतलब होता है, रिटार्डेशन की जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी. जो रिटार्डेशन होता है वो नेगेटिव होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो पॉजिटिव होता है. क्योंकि अगर एक बॉडी या कोई भी व्हीकल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन की वजह से वो इस डायरेक्शन में और ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा. लेकिन अगर आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो तो वो रिटार्डेशन है, तो वो एक ऑपोजिंग फोर्स होता है. तो इसमें एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री. और ये कौन सा वर्क होता है? नेगेटिव वर्क. जब भी एंगल 180 डिग्री होगा तो वर्क विल बी नेगेटिव इन नेचर. Let the object stop after displacement s. In such a situation, the work done by the force F is taken as negative and denoted by minus sign. तो इसमें फोर्स नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, फोर्स नेगेटिव है होता है इसमें. माइनस एफ इंटू एस. आपको हमेशा नेगेटिव वर्क को ऐसे ही शो करना होता है. फोर्स के आगे नेगेटिव साइन लगेगा, ना वर्क डन के आगे लगेगा ना डिस्प्लेसमेंट के आगे लगेगा. It is clear from the above discussion that the work done by a force can be either positive or negative. To understand this, let us do the following activity. हमने देखा था पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क. अभी हम जीरो वर्क भी देखेंगे, उससे पहले एक्टिविटी देखते हैं. लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट अप. आप कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर उठाओगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा और वो वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होगा?
पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। वर्क इज डन बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय यू ऑन द ऑब्जेक्ट, आपने जो वर्क डन किया उस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने में, वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। द ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड, द फोर्स यू एक्सर्टेड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आपने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया है, बॉडी भी तो ऊपर ही मूव हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो कौन सा वर्क हुआ, ये पॉजिटिव वर्क। However, there is a force of gravity acting on the object. अब कुछ भी चीज़ हम ऊपर उठाते हैं तो ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करती है ना। ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, फोर्स लगा रहे हो ऊपर की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही हो रहा है क्योंकि आपने फोर्स ऊपर लगाया, लेकिन ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है, तो यहाँ पे ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो ये नेगेटिव वर्क को शो कर रहा है। अब देखो विच ऑफ दीज फोर्सेस इज डूइंग पॉजिटिव वर्क, अब इसमें पूछे कौन सा फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रहा है, तो जो हमने फोर्स लगाया है वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, और जो ग्रेविटी फोर्स लगा रही है वो नेगेटिव वर्क होता है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था फ्रिक्शनल फोर्स भी नेगेटिव इन नेचर होता है, ऐसे ही ग्रेविटी भी नेगेटिव होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नेगेटिव होता है नेचर में। कुछ भी चीज़ जो अपोज कर रही हो मोशन को, जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी तो हमेशा ही नीचे लगेगी, तो ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव होती है। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली हम उस केस में ग्रेविटी को पॉजिटिव लेंगे, बट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो हमेशा नेगेटिव लेंगे। वर्क इज डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर ऑपोजिंग है तो नेगेटिव होगा। वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स सेम डायरेक्शन में है then positive work. If displacement and force are in opposite direction then it is a negative work. Examples of negative work: frictional force and gravitational force. अब एक और न्यूमेरिकल है, a porter lifts a luggage of 15 kg from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. अब आप बोलोगे मैम आपने तो बोला था कि अगर हम लगेज लेके खड़े हैं तो वर्क डन जीरो है, क्योंकि नेगेटिव है, क्योंकि सॉरी जीरो वर्क है क्योंकि एंगल 90 डिग्री बन रहा है। अगर हमने कुछ भी चीज़ अपने सर पे रखी हुई है तो ग्रेविटी नीचे एक्ट करेगी। ग्रेविटी क्या, इनफैक्ट जो उसका फोर्स लगेगा वो हमारे सर से नीचे जा रहा है, और अगर हम आगे मूव कर रहे हैं ऐसे तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है और फोर्स नीचे लग रहा है, तो 90 डिग्री है। देखो दोनों चीज़ों में ना डिफरेंस है, अगर वो लगेज लेके खड़ा हुआ है तो वर्क डन जीरो है, क्यों, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। लेकिन अगर वो लगेज लेके मूव कर रहा है तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, उस केस में हम वर्क डन निकाल सकते हैं। अब इसमें मास दिया हुआ है 15 kg और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 1.5 मीटर, तो हम इजीली वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू F इंटू एस। देखो कैसे करना है इस वाले न्यूमेरिकल को। दिस वॉज अबाउट पॉजिटिव नेगेटिव वर्क, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन। अब देखो मास इज 15 kg, डिस्टेंस इज 1.5 मीटर। यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन। देखो हमने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था F इंटू एस। अब हमें फोर्स नहीं दिया हुआ, लेकिन फोर्स का फॉर्मूला तो आपको पता होगा ना, MA या फिर mg। तो अगर मास दिया हुआ है तो हम फोर्स तो इजीली निकाल सकते हैं, 15 इंटू 10, जी की वैल्यू 10 रखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 150। तो फोर्स इज इक्वल्स टू 150 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 1.5, ये कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा 15 इंटू 50 225 जूल्स। इजी। नेक्स्ट है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन, व्हेन डू वी से, व्हेन फोर्स इज एक्टिंग in the direction of displacement and a force is able to move any object, then we say the work is done. Now you have to write an expression for the work done when force is acting on an object in the direction of displacement. Easy, W is equals to F into S. जब in the direction होगा तो force होगा पॉजिटिव, अगर ऑपोजिट है तो फोर्स होगा नेगेटिव। अगर ऑपोजिट पूछते हैं तो फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस Fs, और अगर इन द डायरेक्शन होता है तो फोर्स इज इक्वल्स टू प्लस Fs प्लस, और यू कैन ईदर राइट Fs। अब आता है एक
न्यूमेरिकल 1 जूल ऑफ वर्क तो आपको पता है 1 जूल का मतलब देखो क्या हो गया, W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस। 1 जूल करना है, अगर यहाँ पे आपको 1 लेके आना है तो ऑब्वियसली 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 1 आएगा। तो व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर, व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर, देन वी से 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। फोर्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये इंटेक्स क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अ पेयर ऑफ बुलॉक्स exert a force of 140 Newton on a plow. The field being plowed is 15 meter long. How much work is done? देखो फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, इजी है, आपको वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है और वर्क डन कैलकुलेट करना है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन है। नेक्स्ट टॉपिक आता है एनर्जी का। अब हमने पढ़ लिया पूरा वर्क के बारे में, वर्क की डेफिनेशन पढ़ ली, वर्क का फॉर्मूला पढ़ लिया, 3 टाइप्स ऑफ वर्क पढ़े, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। अब पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में। अब देखो एनर्जी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली हमें भी एनर्जी चाहिए, कुछ भी काम करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, चाहे वो मशीन्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो। मशीन्स को फ्यूल्स की फॉर्म में एनर्जी चाहिए होती है, हमें फूड की फॉर्म में एनर्जी चाहिए। तो हर लिविंग और नॉन लिविंग को भी एनर्जी चाहिए। देखो जितने फैन, ट्यूब, लाइट, सबको एनर्जी चाहिए ना, सबके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, तो हर किसी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। द डिमांड फॉर एनर्जी इज एवर इंक्रीजिंग, डे बाई डे इंक्रीज हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो रही है, डिमांड्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो एनर्जी की डिमांड भी बढ़ रही है। वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम? अब देखो सन तो अल्टीमेट सोर्स है ना एनर्जी का, अगर सन नहीं होगा तो प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे, प्लांट्स नहीं ग्रो करेंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड नहीं प्रिपेयर होगा, फूड नहीं प्रिपेयर होगा तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स क्या खाएंगे? तो एनर्जी तो सन से ही मिलती है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। मैनी ऑफ आर एनर्जी सोर्सेज आर डिराइव फ्रॉम सन। मोस्टली चीज़ें जितनी भी हम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हमारी सन से फुलफिल होती है। वी कैन ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, द इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड द टाइड्स। कैन यू थिंक ऑफ अदर सोर्स ऑफ एनर्जी? बहुत सारे सोर्सेज हैं एनर्जी के। अब देखो जैसे जितनी भी ये चीज़ें हैं हमारी नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं, फैन है, ट्यूबलाइट है, इनमें लाइट एनर्जी है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। द वर्ड एनर्जी इज़ वेरी ऑफन यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। हम डेली यूज़ करते हैं, घर में आपने सुना होगा मम्मी बोलती है खाओ इससे एनर्जी आएगी, दूध पियो इससे एनर्जी आएगी, तो डेली हम एनर्जी के बारे में कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं। बट इन साइंस वी गिव इट अ डेफिनेट एंड प्रिसाइज मीनिंग। बट साइंस में उसका एक डेफिनेट और प्रिसाइज मीनिंग होता है। लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल। देखो, व्हेन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ स्टेशनरी विकेट, द विकेट इज थ्रोन अवे। जब भी बहुत तेजी से बॉल आएगी तो विकेट गिर जाती है। सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट व्हेन रेज टू अ सर्टेन हाइट गेट्स द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। आपको याद होगा हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था, जब भी एक स्टोन को किसी हाइट पे लेके जाते हैं तब उसमें एनर्जी आती है। जैसे डैम से पानी गिर रहा है, अगर वो पानी हाइट पे नहीं होगा तो उसमें एनर्जी नहीं होगी। तो अगर एक ऑब्जेक्ट को आपने मोशन में लेके आए हो या किसी ऑब्जेक्ट को आप हाइट पे लेके जा रहे हो तभी उसमें एनर्जी आती है। और एनर्जी कहाँ से आती है? जो वर्क हमने किया है, अगर उसको मोशन में लेके आ रहे हैं तो हम ही तो लेके आ रहे हैं ना, अपना फोर्स लगा के, अपनी एनर्जी लगा के किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आए हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पे लेके गए तब भी हमने अपनी एनर्जी को यूटिलाइज किया उसको हाइट पे लेके जाने के लिए। सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट व्हेन रेज्ड टू अ सर्टेन हाइट गेट्स द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। You must have seen that when a raised hammer falls on a nail placed on a piece of wood, it drives the nail into the wood. देखो अगर हैमर ऐसे ही रखा हुआ है और नेल है एक दीवार पे, एक वॉल पे नेल लगा हुआ है और एक हैमर नीचे रखा हुआ है, क्या वो नेल हैमर कर पाएगा कुछ? क्या वो नेल वॉल में जा पाएगा अगर वो हैमर नीचे रखा हुआ है? नहीं। आपको उस हैमर को उठाना पड़ेगा। जब आपने उसको उठाया आपने वर्क किया, क्योंकि आपने फोर्स लगाया और डिस्प्लेस हुआ है हैमर। तो जब हमने हैमर को उठाया तभी तो उसमें एनर्जी आई। अगर वो नीचे रखा हुआ है तो उसमें एनर्जी नहीं आई। जब हमने हैमर को ऊपर उठाया तब उसमें एनर्जी आई है। तो ऊपर उठाने के बाद जब हम उसे उसमें मारते हैं नेल में तभी तो वो अंदर जाता है नेल। तो एनर्जी तभी आ रही है जब हमने उसे उठाया। We have also observed children binding toys and when the toy is placed on the floor it starts moving. देखो होती है ना, हम चाबी भरते हैं तभी तो टॉय चलता है, तो इसमें भी हमने एनर्जी प्रोवाइड की है। तो कुछ भी चीज़ अगर रखी हुई है, स्टेशनरी है, तो उसमें एनर्जी नहीं होती। हमें अपनी एनर्जी यूज़ करके उस एनर्जी को उस ऑब्जेक्ट में स्टोर करते हैं, तभी वो मूव करता है या तभी उसमें कुछ अलग एनर्जी आती है और तभी वो कुछ काम कर पाता है। अगर वो चीज़ रखी हुई है, स्टेशनरी है, तो उसमें कोई एनर्जी नहीं है।
देखो, दो चीज़ें होती हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। जैसे यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब अगर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज ये ब्रिक है एक, ठीक है, अगर ये ब्रिक रखी हुई है तो क्या ये ब्रिक कोई काम कर सकती है रखी हुई? अगर आपको इस ब्रिक को ऊपर लेके जाना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी इस ब्रिक में ऊपर रखने के लिए। सपोज 20 मीटर की हाइट पे हमें इस ब्रिक को रखना है। अब ये इसने एक हाइट एक्वायर कर ली, इस हाइट एक्वायर करने की वजह से इसमें एक एनर्जी स्टोर होती है जिसका नाम होता है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये एक हाइट पे गई है। अब अगर ये ब्रिक रखी हुई है, कोई भी आया, इसको मूव किया, आगे को थोड़ा पुश किया, तो ये ब्रिक यहाँ आ गई है। और सपोज यहाँ पे कोई खड़ा है, तो अगर ये ब्रिक किसी ने यहाँ से मारा है और इसको लग सकती है ना फिर इस ब्रिक से, तो इसमें जब ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई है हॉरिजॉन्टली, इसने हाइट नहीं एक्वायर करी, कोई यहाँ पे खड़ा है, उसने इस ब्रिक को हिट किया और ये यहाँ पे भी कोई खड़ा है, तो ये ब्रिक किसी को हिट कर सकती है, तो ये होती काइनेटिक एनर्जी। अगर ग्राउंड पे ही कुछ चीज़ मूव कर रही है तो वो होती है काइनेटिक एनर्जी। अगर उसमें हाइट एक्वायर होती है तो वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो जो भी हम वर्क करते हैं वो एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, और दो तरह की एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो सकता है। अगर आपने उसको किसी हाइट पे पहुंचाया है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर आपने उसमें कुछ मोशन किया है हॉरिजॉन्टली तो वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। When a balloon is filled with air and we press it we notice a change in the shape. देखो, कोई एयर फिल्ड एक बलून में, और अगर हम प्रेस करते हैं तो उसकी शेप में चेंज आता है। As long as we press it gently, it can come back to its original shape and the force is withdrawn. जब तक आपने उस बलून को प्रेस किया हुआ है उसकी शेप चेंज रहेगी, जैसे आप फोर्स हटाओगे बलून वापस से अपनी शेप में आ जाएगा। However, if we press the balloon hard, it can even explode, producing a blasting sound. In all these examples, the object acquired through different means the capability of doing work. तभी तो ये वर्क कर सकते हैं। अब सपोज यहाँ पे ये ब्रिक रखी है, अब अगर ये ब्रिक ऊपर से नीचे गिरेगी तो ये किसी को भी हिट कर सकती है। अगर ये ब्रिक नीचे रखी थी, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, इसकी कोई हाइट नहीं है, तो ये कोई काम नहीं कर सकती। अब इसने वर्क एक्वायर करा, अब इसके अंदर कैपेबिलिटी है वर्क करने की। जैसे पानी होता है ना डैम्स में, बहुत हाइट पे स्टोर होता है, अगर वो हाइट पे तभी उसमें कैपेबिलिटी है वर्क करने की, अदरवाइज नहीं होती। सो एन ऑब्जेक्ट हैविंग कैपेबिलिटी टू डू वर्क्स इज सेड टू पोजेस एनर्जी। जिस भी ऑब्जेक्ट में काम करने की कैपेबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं एनर्जी। उस बॉडी में एनर्जी, जैसे ह्यूमन बींग्स है, अगर हमारे अंदर काम करने की एबिलिटी नहीं है तो हम बोलते हैं ना एनर्जी डाउन है आज। कभी कभी एनर्जी डाउन हो जाती है, काम करने का मन नहीं करता, लेकिन जब एनर्जी हमारी अच्छी होती है, बहुत हाई होती है, तो हम बहुत काम करते हैं। तो द कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी। जिस भी ऑब्जेक्ट में काम करने की कैपेबिलिटी होती है उसमें हम बोलते हैं एनर्जी है। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेज द एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन्स द एनर्जी। अब देखो, अगर हम काम कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो हमारी एनर्जी लॉस हो रहा है ना, हमारी एनर्जी का लॉस हो रहा है। ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये हम हैं, हमने इस ऑब्जेक्ट पे काम किया इसको ऊपर रखने में, तो हमारी एनर्जी का लॉस हो रहा है, और जो हमारी एनर्जी का लॉस हो रहा है वो इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रहा है, इसीलिए इनके पास एनर्जी आती है और फिर इनके पास कैपेबिलिटी होती है काम करने की। तो जो काम कर रहा है उसका लॉस होता है, और जिस ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है उसको गेन होता है एनर्जी का। रीड करो ये वाली लाइन फिर से और हाईलाइट करो इस पॉइंट को। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क loses energy and the object on which the work is done gains energy. तो ये एनर्जी को गेन करेगा, ये एनर्जी को गेन करेगा, और ये इसकी एनर्जी का लॉस होगा। जो काम कर रहा है ऑब्वियसली ना, जो काम करता है उसकी एनर्जी का लॉस होता है, और जिस पे काम होता है उसको एनर्जी मिलती है, तभी उनमें कैपेबिलिटी आती है काम करने की। How does an object with energy do work? An object that possesses energy can exert a force on another object. When this happens, energy is transformed from the former to the later. अब हमने इस पे वर्क किया तो इस पे एनर्जी आ गई, अब ये काम कर सकता है कुछ भी। अगर इसको हमें ऊपर से नीचे गिराना है और किसी को मारना है सपोज, तो हाँ ये मार सकती है ब्रिक, लेकिन जब ये ब्रिक नीचे रखी है तो ये नहीं कर सकती। हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विद एनर्जी डू वर्क? क्योंकि उसमें एनर्जी आती है, हमसे किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी ट्रांसफर हो गई है। द सेकेंड ऑब्जेक्ट में मूव एज इट रिसीव्स एनर्जी एंड देयरफॉर डू सम वर्क। या तो हम उसको मूव कराएं हॉरिजॉन्टली,
तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी और वो फिर काम कर सकता है. द फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैज द कैपेसिटी टू डू वर्क. दिस इम्प्लाइज दैट एनी ऑब्जेक्ट दैट पोजेस एनर्जी कैन डू वर्क. द एनर्जी पोजेस बाय एन ऑब्जेक्ट इज दस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. बार बार यही लाइन आ रही है एनर्जी की, कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क. द यूनिट ऑफ एनर्जी विल बी जूल्स. यूनिट ऑफ एनर्जी भी जूल्स है और वर्क डन की भी एनर्जी जूल्स है. दोनों की यूनिट सेम है. एनर्जी की भी जूल्स है और वर्क डन की भी जूल्स है. 1 जूल क्या होगा? जब एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ द यूनिट ऑफ एनर्जी इज देयरफॉर द सेम एज दैट ऑफ वर्क, दैट इज जूल. 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क. समटाइम्स अ लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलो जूल इज यूज्ड. अब आती है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. जैसे हीट एनर्जी होती है, हीट से लाइट एनर्जी बनती है, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी. बहुत टाइप्स की एनर्जी होती है. आपके सिलेबस में 3 एनर्जी है. एक है काइनेटिक एनर्जी, एक है पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है मैकेनिकल एनर्जी. काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिलके मैकेनिकल एनर्जी होता है. अगर किसी बॉडी में दोनों एनर्जी प्रेजेंट है साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? मैकेनिकल एनर्जी. सपोज कोई बर्ड है, वो फ्लाई कर रहा है. अब बर्ड अगर फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है हवा में, तो देखो वो हॉरिजॉन्टली भी उड़ रहा है और वो हाइट पे भी है. तो उसमें दोनों एनर्जी है, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी, क्योंकि वो अपनी जगह से भी डिस्प्लेस हो रहा है और वो एक हाइट पे भी है. जैसे एरोप्लेन है, उसमें भी दोनों एनर्जी, क्योंकि वो एक हाइट पे भी है और वो उड़ भी रहा है हवा में, तो दोनों एनर्जी है. तो अगर किसी बॉडी में दोनों एनर्जी होती हैं, कौन सी दोनों एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी. ये तीनों एनर्जी हम कल करेंगे. काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी की भी 2 फॉर्म्स होती हैं. एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. सो ये वाला टॉपिक हम कल करते हैं. आज के लिए इतना ही. मैं अभी छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ ताकि आप फटाफट रिवीजन करो. आपके FA के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं. 9th क्लास में FA के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, फिर SA2 के एग्ज़ाम आएंगे. तो जल्दी जल्दी आप शॉर्ट वीडियो से अपना रिवीजन कंप्लीट करो. और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो. अगर आपको वीडियोस से हेल्प मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और कमेंट करो. कोई भी डाउट है तो भी कमेंट करो. ओके. और बाकी अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. कोई भी दिक्कत है आप टेलीग्राम पे भी बता सकते हो, कमेंट्स में भी बता सकते हो. नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो ऑल राइट देन, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.